Hello all, welcome to 4-Dimension Infotech StatPro series. So StatPro is a structural analysis and design software which is invented by research engineers. It was brought by Bentley Software. It is one of the most used structural analysis and design software product जो कि बहुत यूजफुल है. इन StatPro इनपुट एंड आउटपुट दो तरीके से हम दे सकते हैं. जैसे कि इनपुट अगर हमें देना है तो वो बाय सेटअप, ज्योमेट्री, जनरल, एनालिसिस एंड प्रिंट, डिजाइन, एंड देन द आउटपुट इज जो StatPro हमें देता है विच इज shear force and bending moment value, reactions, shear force diagram and bending moment diagrams, deflection, design output and final reports. In a setup, information related to client, engineer name, इस तरह से हम information fill up करते हैं setup में. And then in geometry, first we do 2D and then 2D से 3D में उसे convert करते हैं in the geometry. जनरल में हम अपलोड एप्लीकेशन करते हैं जैसे कि लाइव लोड, डेड लोड, विंड लोड, सिस्मिक लोड, ये सारे लोड्स अप्लाई करते हैं हम जनरल में. और उसके बाद आता है एनालिसिस एंड प्रिंट. एनालिसिस एंड प्रिंटिंग में हम जो भी हमने अभी तक काम किया है वो प्रॉपरली आईएस कोड के हिसाब से किया है या नहीं, ये एनालिसिस होता है. एंड देन डिजाइन पार्ट. इन द डिजाइन वी कैन डू कंक्रीट डिजाइन स्ट्रक्चर एंड स्टील डिजाइन स्ट्रक्चर, इसमें आता है. नेक्स्ट इज अ स्ट्रक्चर विच इज कंक्रीट स्ट्रक्चर भी हो सकता है, स्टील स्ट्रक्चर भी हो सकता है, ट्रस स्ट्रक्चर भी हो सकता है. StatPro में मेनली ये चार वर्ड्स बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं: ट्रस, प्लेन, स्पेस, फ्लोर. अ ट्रस इज अ स्ट्रक्चरल कंसिस्ट ऑफ ट्रस मेंबर which can have only axial members, forces and no bending in the members. Plane. A plane structure is bound by a global XY coordinate system with loads in the same plane. A space structure ये ज़्यादा यूज किया जाता है StatPro में, which is a 3-dimensional frame structure with loads applied in any plane, is the most general. And a floor structure is a 2 or 3-dimensional structure having no horizontal movement of the structure. यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा बार स्ट्रक्चर ये वर्ड हाईलाइट किया है. A structure is nothing but it is an assemble of elements. Stat which is capable of analyzing and designing structures consisting of both frames and finite elements. That's why we call it as StatPro. Almost any type of structure can be analyzed by Stat, like frame elements, finite elements. In frame elements, beam elements, like column elements which are connected by two nodes. In finite elements like plates, solids which are connected by 3 to 4 nodes are of plate and 4 to 8 nodes are of solids. In the case of StatPro, nodes becomes joint. It has a number and XYZ coordinates. Beams become membered. It has a number and nodes at its ends. Plate become an element. It has a number and a node at its corner. Here is, as I told you, it's a beam member which is called it as, you can say it as truss or beam, जो कि दो नोड्स के बीच में जो दिया है ब्लैक में वो उसे हम बीम कहते हैं. दिस वन इज नोड 1 एंड दिस वन इज नोड 2. मतलब ये जो है ये आपका स्टार्ट पॉइंट हो गया नोड 1 और नोड 2 इज द एंड पॉइंट, लाइक दिस. सो जब भी हम मेंबर को स्टार्ट करेंगे प्लेस करने के लिए तो जो फर्स्ट पॉइंट आपका क्लिकिंग पॉइंट रहेगा उसे हम स्टार्ट पॉइंट कहेंगे एंड द सेकेंड क्लिकिंग पॉइंट को आप उसे एंड पॉइंट कहेंगे. सो नाउ लेट्स स्टार्ट फॉर अ डे 1. इन डे 1 वी लर्न इंट्रोडक्शन टू StatPro, यूजर इंटरफेस, बेसिक सेटिंग्स, how to open new project file. जब भी आप StatPro को ऑन करोगे तो आपके सामने इस तरीके से एक विंडो आएगी जहाँ पे लोगो दिया हुआ है StatPro का. Stat it means structural analysis and design software. Pro it means by professional and engineers. V8i is a version V8i. Then यहाँ पे भी सेम ही है. उसके नीचे दिया है प्रोजेक्ट टास्क, recent files, help topics and license configuration.
प्रोजेक्ट टास्क में जब भी आप कोई भी न्यू प्रोजेक्ट आपको ओपन करना है तो आप यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट ओपन करना है तो आप यहाँ पे ओपन प्रोजेक्ट पे क्लिक करके कोई भी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट हम सिलेक्ट करके उसे ओपन कर सकते हैं। देन द नेक्स्ट वन इज कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इन स्टार्ट प्रो। जैसे कि यहाँ पे आपको यूनिट सेटअप करना है, सो बेस यूनिट आपको सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले बेस यूनिट आपको मेट्रिक सिस्टम ही आपको रखना पड़ेगा फॉर मीटर एंड फीट इंचेस के लिए आपको यहाँ पे इसे मेट्रिक ही रखना पड़ेगा। देन द नेक्स्ट वन इज स्टैड डिफॉल्ट डिजाइन कोड्स। मतलब यहाँ पे आपको डिजाइन कोड सेट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टील डिजाइन कोड हमें इंडिया में जो यूज किया जाता है वो IS 800 है, इसलिए यहाँ पे स्टील डिजाइन कोड यहाँ पे IS 800 आपको सिलेक्ट करना है। वैसे ही कंक्रीट डिजाइन कोड इंडिया में यूज होने वाला कंक्रीट डिजाइन कोड IS 456 है, तो यहाँ पे IS 456 हमने सेट किया है। एंड देन हम शेयर वॉल डिजाइन अगर हमें करनी है तो यहाँ से भी शेयर वॉल डिजाइन के लिए IS 456 आपको यहाँ पे ये सेटिंग्स में करना है, चेंज करना है। देन द ग्लोबल एक्सिस ओरिएंटेशन में यहाँ पे एक्सिस आपका Y अप होना चाहिए। अगर आपको Z अप भी रखना है तो आप Z डायरेक्शन अप में रख सकते हैं। बेसिकली मैं Y अप प्रेफर करती हूँ जब भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करती हूँ तब। सो लाइक दिस वे यू कैन क्लिक ऑन अप्लाई एंड देन क्लिक ऑन एक्सेप्ट। मतलब इस तरह से सारे के सारे जो भी सेटिंग्स हमने किए हैं वो अप्लाई हमने किए हैं। अप्लाई करने के बाद क्लिक ऑन न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से चूज करना है। जैसे हमने पहले इंट्रोडक्शन में देखा था कि 4 प्लेन्स में स्टैट प्रो यहाँ पे 4 वर्ड्स ज़्यादा यूज किए जाते हैं, जैसे कि स्पेस, प्लेन, फ्लोर एंड ट्रस। सो इसमें स्पेस में बहुत ज़्यादा काम किया जाता है। सो क्लिक ऑन स्पेस ऑप्शन। यहाँ पे स्पेस पे क्लिक करने के बाद फाइल नेम आपको सेट करना है। जो भी आपका फाइल नेम है वो आपको यहाँ से लेना है। सपोज यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर 3 नाम दिया है फाइल नेम को। यहाँ पे लोकेशन है, आप डिफॉल्ट लोकेशन भी रख सकते हो या फिर यहाँ पे 3 पॉइंट्स पे क्लिक करके आप अपने प्रोजेक्ट्स के असाइनमेंट्स का सेपरेट लोकेशन भी सेट कर सकते हो। देन द नेक्स्ट इज यूनिट सेटअप। सो आपको यूनिट सेटअप करना है, तो अब हमें मीटर में काम करना है, इसलिए हमने यहाँ पे मीटर सेट किया है। एंड देन फोर्स यूनिट इज इन किलो न्यूटन। मेक श्योर कि यही आपकी सेटिंग होनी चाहिए, मीटर एंड किलो न्यूटन। देन द नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं, ऐड बीम, ऐड प्लेट, ऐड सॉलिड, ओपन स्ट्रक्चर विजार्ड, ओपन स्टैड एडिटर एंड एडिट जॉब इंफॉर्मेशन। अब हमें बीम्स ऐड करने हैं, मतलब जो भी हम अब मॉडल क्रिएट करेंगे, बीम्स एंड कॉलम्स जो भी हम ऐड करेंगे वो ऐड बीम में आता है। सो यहाँ पे ऐड बीम ऑप्शन हम टिक ऑन करने वाले हैं। When you click on add beam option, it means begin building your model by creating new joints and beams using a construction grid, drawing tools and spreadsheet। मतलब हम construction grid के हिसाब से draw करते हैं। By if you click on add plate option, then your model by creating new joints and 3-noded and 4-noded plate elements using construction grid, drawing tools and spreadsheets। If you click on solids option, your model by creating new joints by 8-node solid brick elements using the construction grid, drawing tools and spreadsheets। If you click on open structure wizard, it is a model by using standard parametric structural templates for trusses, surfaces, bay frames and much more। If you click on open STAD editor option, then your model using STAD syntax commands through the STAD editor। If you click on edit job information, it means it provides the information about the new job before building your model। So first we click on add beam option and then click on finish option। आफ्टर फिनिश यहाँ पे इस तरह से आपको आपका मेन स्क्रीन आपको दिखाई देगा। सो यहाँ पे ऊपर की तरफ दिया है इट्स अ लोगो फॉर स्टैट प्रो। दिस वन यहाँ पे जो दिया है इसे मेनू बार कहते हैं स्टैट प्रो में। उसके नीचे जो दिया हुआ है उसे टूल बार कहते हैं। दिस वन इज अ टूल बार।
देन दिस वन इज कॉल्ड एज पेज कंट्रोल, इसे पेज कंट्रोल कहा जाता है। सो यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे अगर हमने क्लिक किया तो सेटअप ऑप्शन रहता है। दिस इज योर डेटा एरिया, यहाँ पे हम डेटा एंट्री करते हैं, जैसे कि आपको जॉब, क्लाइंट नेम, फाइल की डायरेक्टरी कहाँ पे, कौन से डेट एंड टाइम, दिस वन इज द डेट एंड टाइम। सो यहाँ पे आप डेटा एंट्री करते हैं। सो दिस इज योर डेटा एरिया। सो यहाँ पे सेटअप पे अगर हमने क्लिक किया तो यहाँ पे एक विंडो पॉपअप होती है। सो ये जो है ये यहाँ पे सेटअप ऑप्शन के लिए है। देन इफ़ यू क्लिक ऑन ज्योमेट्री, सो ज्योमेट्री पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस तरह से एक विंडो आती है। सो ये ज्योमेट्री के लिए हम यूज़ करते हैं फॉर स्नैपिंग नोड और बीम्स के लिए। इफ़ यू क्लिक ऑन जनरल टैब, यहाँ से जनरल टैब ओपन होता है। तो यहाँ पे एक विंडो आती है जिसमें प्रॉपर्टी एडिटिंग करते हैं हम। यहाँ से जो भी हमने बाय यूजिंग नोड्स एंड हमने जो भी बीम्स क्रिएट किए हैं उसे अगर आपको 3D में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए ये प्रॉपर्टीज ऑप्शन हम यूज़ करेंगे। सो उसे प्रॉपर्टीज हम यहाँ से प्रोवाइड करते हैं। देन द नेक्स्ट वन इज एनालाइज एंड प्रिंट। तो यहाँ से आपने जो भी अब तक काम किया है उसे हम एनालाइज एंड प्रिंट में हम यहाँ से कन्वर्ट करेंगे। एंड द फाइनल पार्ट इज डिज़ाइन पार्ट। सो जो आपका फाइनल आउटपुट आता है वो यहाँ पे आता है, फाइनल डिज़ाइन पार्ट, जिसके लिए हम डिज़ाइन ऑप्शन यूज़ करते हैं। दिस इज द मेन एरिया, जो भी वर्किंग एरिया है इसे वर्किंग एरिया कहा जाता है। दिस वन इज योर, यहाँ से ये एक्स एक्सिस है 0 to 10 तक यहाँ पे हमने जो सेट किया है। दिस वन इज एक्स एक्सिस। देन दिस वन इज द वाई एक्सिस, और ये जो पॉइंट के नीचे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इसे ग्रिड कहा जाता है। दिस इज द ग्रिड। दिस इज योर यूसीएस, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम, लाइक XYZ एक्सिस दिया है यहाँ पे। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेन UI. So this is all about day 1. In the next video we learn day 2 commands. Thank you.